Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to continue the definitions of variable and some other practicals related to the variables, that how do we apply variables and how do we utilize in the JavaScript. So here you can see a page. It's a sample value, you can say, in a table. The first thing is you can see numbers, then string, and then boolean. As I told you that there are many kinds and many types of data in Java and in all other programs. First of all, you should know about the data types if you want to proceed your programming in a well way. So the first thing is you will find the most important thing, that is number. Numbers are started from 0 to 9, and after that string value is always displayed in double quotes, and it shows like a specific and special character. And then boolean means when you get the answer in true and false, and here you use multiple operators to find out the boolean expressions, right? Just like where do we compare two things like 20 greater than 30. Here we will just get the answer in the form of true, so that kind of data is called the boolean data. So here I'm just going to read out the definition. First of all, a variable is declared with the var keyword. As you know, we always use short keywords to declare the variables and to write down the programs and multiple aspects of the things. Like where is a keyword, and the multiple variables can be declared in the same line of the code too, because the computer and the compiler understand what you are going to write down, because everything is saved in the memory of your programming, and so that is why computer completely understand that if what is meant by the where means the variable. So the first ever assignment of the value to variable in the lifespan of the programming called initialization. When you start your program, that is called initialization, and we do work on it. And then a good programming practice is to declare and initialize the variable at the same time. That if you are declaring the variable, you have to put the variable, what kind of variable you are going to assign, what kind of data type you are going to use. Like if you are going to use character, so you use the char, because you are just putting the character value in it. But first of all, you have to declare the variable, that variable, what kind of variable you are going to do it. So if you put everything in a proper sequence and proper initialization you apply, then you will just get the required result without any kind of error and any kind of barrier. So let's move ahead and find out the next slide is. Here I'm just going to teach you and tell you in Urdu, because it's maybe a little bit difficult for many students, so that is I'm just going to explain in Urdu. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, हम लोगों ने एक HTML की एक बॉडी यहाँ पे ली हुई है. HTML का हमने जो कोड है उसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर यूजिंग स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, दैट यू आर वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट. यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं, वेरिएबल A, B एंड reward में we are going to put some values like 4 times 5, और उसके बाद A is equal reward. यहाँ पर हमने परसेंटेज का साइन लिया है, जो कि हम क्वोशंट के लिए लेते हैं, कि रिवॉर्ड जो है उसको वो जो 10 के ऊपर डिवाइड किया जाए, मीन्स 4 times 5 जो है उसको डिवाइड किया जाए 10 के ऊपर, तो उसका आंसर जो आए वो हमारे पास रिमाइंडर आए या क्वोशंट आए. तो रिमाइंडर नहीं मांग रहे, हम क्वोशंट मांग रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू. अच्छा, उसके बाद बी पे हमने क्या किया है कि बी में हमने रिवॉर्ड को डिवाइड किया है 10 के ऊपर, लेकिन वी आर जस्ट गेटिंग द रिमाइंडर हेयर. और आपको एंड वाली स्टेटमेंट पता है कि दैट इफ़ यू वांट टू टेक द प्रिंट ऑफ जावास्क्रिप्ट, देन वी राइट एंड वी पुट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हेयर. डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और उसके दरमियान में इतना गैप आने के बाद बी का आंसर आ जाए. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम, और अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस हेयर इन द प्रोग्राम. तो यहाँ पर जो है आई हैव ओपन द स्क्रीन, और साथ ही मैंने प्रेजेंटेशन का पेज भी ओपन कर लिया हुआ है. तो मैं कम्प्लीटली कोडिंग यहाँ पर टाइप करती हूँ. मैं HTML के बाद बॉडी टैग लगाती हूँ. बॉडी टैग के बाद मुझे क्योंकि इसको जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करना है, तो आई एम राइटिंग हेयर स्क्रिप्ट, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द जावास्क्रिप्ट. तो टाइप के साथ मैं एक डबल कोट लेती हूँ. डबल कोट के अंदर मुझे क्या वैल्यू एंटर करनी है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन कि मैं एक टेक्स्ट जो है वो उस टेक्स्ट पे काम करने जा रही हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप हियर एंड क्लोजिंग. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द स्क्रिप्ट टैब. यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स ले रही हूँ, वेरिएबल A, B, और उसके बाद मैंने जो थर्ड वेरिएबल है वो मेरा एक बिल्ट इन भी हो सकता है,
बिल्ट इन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड कितना है मेरे पास, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल का लिखना काफ़ी नहीं है, वी नीड टू पुट द वैल्यू एज वेल। तो 55555 हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है, और यहाँ पे रिवॉर्ड हमने डिवाइड किया है 10 पे, फिर हमने इसको डिवाइड किया है दूसरे वाले 10 पे, जिसका क्वोशंट और रिमाइंडर लेंगे। यहाँ पर अब आप अगर आंसर देखें तो आपके सामने ये इस तरीके से आंसर आ गया है, क्वोशंट आ गया, उसके बाद आपका रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी रीड करेंगे कि वो प्रोग्राम हमने कैसे करना है। उसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रही हूँ, और उसके बाद हम उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं सिर्फ रन करके दिखाऊंगी उसकी कोडिंग आपको कि उसके अंदर हमने क्या चेंज लाया है। तो लेट्स सी and now it's important to note that sequence of the instruction in programming matter. For example, let's look at the following code where we define two variables and keeping the good practice in mind, declared and initialized variable name in 7 line. ये complete, इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैं प्रोग्राम समझा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो लास्ट लाइन है, बट द चेंज ऑफ द सीक्वेंस माइट लीड टू अनएक्सपेक्टेड बग। बग्स का मतलब होता है एरर, और यहाँ पर ना एक लिखा हुआ है अनडिफाइंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड एक छोटे से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल लिखा, आपने उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की। दो तरह की चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, एक आती है आपके पास नल वैल्यू और एक आपके पास आती है अनडिफाइंड। दोनों में डिफरेंस है। नल वैल्यू का मतलब होता है नथिंग, एंड अनडिफाइंड का मतलब होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू पुट समथिंग इन इट, मतलब यू नीड टू पुट इट बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। जैसे कि आपको पता है, मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि हमारा जो पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो मैथमेटिक्स पे चलता है। जैसे कि कहते हैं कि अगर हम ये बात करें कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, तो ये कम मतलब कोई झूठ बात नहीं होगी। बेसिकली पूरी दुनिया एक कैलकुलेशंस के ऊपर चल रही है, लेकिन कैलकुलेशंस हमारी कैसे होती है? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स, डिजिट जो कि हमारे पास हैं 0 to 9 बेसिक नंबर्स हैं, उसके बाद हम इनको ऐड करके बाकी नंबर्स जो है वो कंपाउंड करते हैं, बनाते हैं। लेकिन इफ़ यू want to calculate the things in the world, we need something, हमें कुछ ज़रूरत है उसकी। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी दो वैल्यूज़ को कंबाइन करके, कम्युनिकेट करके हमें एक परफेक्ट सा आंसर देते हैं? वो हमारे ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑपरेटर्स यू आर गोइंग टू यूज़ इट। सो वी विल रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स अकॉर्डिंगली। जावा स्क्रिप्ट supports arithmetic operators to be used, which are addition, subtraction, multiplication, and division. Other than this, the modulus operators can also be used, which gives the remainder of the division operations. The code shown in the figure 2.25 and take three variables like a, b, reward जो बताया था अभी मैंने आपको, वहाँ पर आपने देखा कि आपके पास एक क्वोशंट का जो है वो ऑपरेटर लिया, आपने एक रिमाइंडर का ऑपरेटर लिया, उसके बाद आपने उसको 10 पे डिवाइड कर दिया। 10 पे डिवाइड किया है, वो भी साइन यूज़ हुआ है उसके साथ। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो आपके प्रोग्राम या आपके डिजिट्स के दरमियान में कम्युनिकेट करके आपको एक डिफरेंट सा रिजल्ट देते हैं, दीज ऑल आर योर ऑपरेटर्स। हियर वी आर गोइंग टू डू इट। ये देखें, यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो कि मैं सिंपल सा वहाँ पर रन करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लाइक यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि मैंने पूरा HTML का एक पेज लिया, उसके ऊपर मैंने जावा की स्क्रिप्ट को हाईलाइट किया, और आफ्टर दैट सेम वही चीज़ है, रिवॉर्ड भी वही है, AB वेरिएबल्स भी वही हैं डिक्लेयर किए, और उनको आगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक डॉक्यूमेंट राइट करना है, लाइक मुझे एक स्टेटमेंट साथ में करनी थी, मुझे बताना था। पहले मैंने सिंपल सी एक चीज़ की थी कि 5 डैश डैश डैश, और उसके बाद उसका जो रिमाइंडर है वो चीज़ करके क्वोशंट रिमाइंडर के साथ मैंने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a, यहाँ पर सिंपल सा एक सेंटेंस ऐड किया जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप ऐड करोगे वो एज इट इज़ आपकी डिस्प्ले होगी आपके सामने। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल b इज़ 555.5। सो हियर यू कैन सी द स्टेटमेंट सिंपल। तो इस प्रोग्राम को अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले माई वीडियो हियर, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आपके सामने, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। हियर यू कैन सी द प्रोग्राम। यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ वैल्यू एंटर की, रन करते हैं तो ये देखें, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ 5 एंड द वैल्यू इज़ द वेरिएबल इज़ 555.5। सो लाइक दिस यू कैन डू इट। एंड इसमें सिंपल सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू को शो करने के लिए हम लोगों ने जो है वो ऐड की हैं। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है।
और यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टॉक अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स में आंसर लेते हैं हमेशा. जस्ट लाइक कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अमंगस्ट choices the program chooses on the basis of the some constraint. Apply any if statement before one or more lines of code on the basis of the some conditions is met makes a typical selection scenario. That is, if the condition is met, then those lines will be executed, otherwise skipped. कि अगर आपका वो कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है तो आपका वो रन होगा, अगर वो नहीं हो रहा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. यहाँ पर आप कुछ ऑपरेटर्स देख सकते हैं. इज इक्वल का ऑपरेटर हम कंप्यूटर में किस तरह से यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में. फिर इज़ नॉट इक्वल, इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल एंड लेस दैन इज़ इक्वल. सो इसको अप्लाई कैसे करना है, हमने एग्जाम्पल्स में जो है वो एक्स वाई के साथ इसको अप्लाई किया हुआ है, और इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो आपका कंप्लीटली ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा. यहाँ इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है जो कि मैं आपको पहले समझाऊंगी और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमें मज़ीद जो कंप्लीट बैकग्राउंड है उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है. स्क्रिप्ट टाइप वो यहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ कि वेरिएबल मैंने लिया है किड एज इज इक्वल 5, कि जो बच्चे की एज है वो 5 है. इफ़ द किड एज इज ग्रेटर दैन 3, अगर ग्रेटर दैन होती है 3 से, तो क्या लिखा हुआ आए मेरे पास कि किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसके लिए क्या आना चाहिए. तो डॉक्यूमेंट राइट क्या करें, उसको एडमिशन ग्रांटेड बोल्ड में लिख दें. बी का टैग लगाया हुआ है आपने देखें, तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल्ड में हो जाएगा. तो इसके लिए जो प्रोग्राम है, आई एम जस्ट गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम एंड यू विल सी दैट हाउ डू वी कैन अप्लाई द थिंग्स लाइक दिस. तो इस प्रोग्राम को जो है वो सबसे पहले हम राइट करते हैं प्रॉपर्ली, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को राइट किया और कैसे हमने इसका कोडिंग बनाई है. तो यहाँ पर मैं HTML का एक टैग ले रही हूँ. क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको पता है. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द बॉडी हेयर, बॉडी क्लोजिंग एंड ओपनिंग हेयर, एंड देन स्क्रिप्ट लिखूंगी क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द जावा स्क्रिप्ट, सो दैट इज आई एम जस्ट राइटिंग हेयर जावा स्क्रिप्ट. एंड टाइप के बाद मैं इसको इज इक्वल टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हेयर. कंप्लीटली समझा रही हूँ इसको डिटेल से आपको. और यहाँ पर जो है वो जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी हूँ. जावास्क्रिप्ट ऐड करने के बाद आप देखें हमारे पास नीचे सिंपल सी जो चीज़ चेंज है वो हमारे पास है वेरिएबल. वेरिएबल मींस कि हमारे पास किड की एज है और उसके बाद क्या चीज़ है आपके पास 5 और 3 है. 5 और 3 को हमने किस तरीके से मैनेज किया है थ्रू द ऑपरेटर. सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द थिंग्स. अच्छा, अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट इसको क्लोज करने के बाद आपको जैसे हम क्लोज करते हैं आपके पास एक क्लोजिंग टैग आ जाता है सामने. तो वेरिएबल फर्स्ट वाला जो है वो मेरे पास है किड एज. मैंने वेरिएबल के बारे में कुछ डिटेल बताई हुई थी कि वेरिएबल की 4 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. कि वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल हो. यहाँ पे किड एज का पता चल रहा है, लेकिन किड एज को हम ज्वाइन करेंगे बाय अंडरस्कोर, बिकॉज अंडरस्कोर एक ऐसा करेक्टर है जिसके थ्रू आप जो है वो किड एज डिफाइन कर सकते हैं. तो किड अंडरस्कोर एज अगर हम करते हैं तो वो आपकी 5 है. तो यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि आपको उन रूल्स को फॉलो करना है. एक तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो जो है वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होने चाहिए. तो मैंने यहाँ 5 लिखा है. और आफ्टर दैट इफ़ द किड एज इज़ ग्रेटर दैन 3, जो किड की एज है अगर वो 3 से ग्रेटर है तो हमने उसका आंसर क्या एक्सेप्ट करना है. किड अंडरस्कोर एज ग्रेटर देन 3 और 3 जो है उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डॉक्यूमेंट और हम लिखेंगे बोल्ड में एडमिशन ग्रांटेड. लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल फाइंड आउट अ स्टेटमेंट इज एडमिशन ग्रांटेड. ये एक तो सिंपल सा यूज़ ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर का सिंपल सा यूज़ था. अब इसके बाद जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा हमने एडिशन किया होगा उसके अंदर. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी. आई विल एक्सप्लेन इट कि वो क्या चीज़ है. तो थैंक यू सो वेरी मच. आई होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की जो है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से वी डिक्लेयर द वेरिएबल. तो here we just do the things like this. Thank you so very much and Allah Hafiz.